We are starting the event. I request everyone to put their phones on silent or vibration. And I request Abhiruchi members, CR, DCs, hostel DCs to kindly maintain the decorum of the hall. This session will truly enlighten you, so please be prepared for the best. मनः प्रश्मनोपायो योग इत्य भिद्यते, अर्थात मन के प्रश्मन के उपाय को योग कहते हैं. Good evening, ladies and gentlemen. Today we are going to learn about Sahaja Yoga. Sahaja Yoga is a method of meditation resulting in evolved spiritual personality through the awakening of Kundalini. This process of Kundalini awakening called self-realization was discovered by Her Holiness Sri Mataji Nirmala Devi in 1970 and has since spread all around the world. In these modern times, through Sahaj, which means spontaneous, Yoga, which means union with oneself, this experience has become effortless and available to everyone through self-realization for the first time in the history of human spirituality. Can we have a big round of applause for Sahaja Yoga Foundation? Now, we'll get identified and we'll introduce the guests who will make this whole evening so enchanting today. We have the singers panel today on the stage. The first I'd like to introduce is Mr. Manish Rathore. He started his musical journey at the early age of 14. He is a professional Indian classical, bhajan, ghazal and Sufi singer. He has good command of khayal, thumri, bhajan and ghazal with Sufi, and also takes sessions of music with meditation, that is a music therapy, Omkar therapy and Bijman therapy. His gurus are Sri Invertis Rana, Pandit Shambhu Prasad Pawar and Dr. Roshan Bharti. Can we have a big round of applause for Manish Rathore? Coming up next, we have the second singer of the panel, Mr. Mayank Rathore. An eminent professional musician, he has learned violin at the early age of 10 years and learned sarangi from Ustad Farooq Latif Khan of Gwalior Gharana. He also plays harmonium and keyboard. And I have been asked to state that violin is one of the most hard instrument to be played. So a big round of applause for him for being so efficient. Now we'd like to introduce Mr. Ajay Rathore. He's an MA in Tabla and qualified National Eligibility Test, that is NET, and he has Junior Research Fellowship in Percussion Instruments. Can we have a big round of applause for him? And to not forget, his gurus are Sri Invertis Rana and Ustad Akram Khan Sahab. Can we have a big round of applause for all the three singers of today? Now, let's introduce the panel who has made this event possible. First, I'd like to introduce Dr. Aparna Pond, Miss MS-ENT. She was practicing ENT surgeon in a government hospital in Greater Noida, presently working as an ENT consultant in Romania. She has been practicing Sahaja Yoga since last 30 years. She has served as a medical officer in International Sahaja Yoga Health and Research Center, Navi Mumbai, and in Sahaja Yoga Health Center, Greater Noida. Also as a medical officer in the National Sahaja Public School, Dharamshala, HP. She has conducted many Sahaja seminars and workshops, conferences, TV and radio programs, and online sessions on Sahaja Yoga meditation in India and abroad. She believes that peace comes from within and one can transform only when it is connected to the divine. And for that, the simplest method is just Sahaja Yoga. Can we have a big round of applause for her? A big round of applause for her. Now, I'd like to introduce Mr. Rahul Mohan Gupta. He is a graduate over the last 25 years and is currently Director of Operations in an MNC. Sahaja Yoga has helped Rahul shape the personal and professional aspects of his life. He has been honored to conduct numerous workshops on stress management and personality development through Sahaja Yoga in corporate, government organizations and educational institutions. These include SCL, IIPA, MEA, LPU, Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences, Bikaner, Rashtriya Rifles, Barclays, Emerson and NSFDC, among others. Can we have a big round of applause for Rahul Mohan Gupta?
Now coming up next is a very versatile personality. He is an ex-Inversion, Mr. Amit Sharma. Mr. Amit Sharma is an alumni of Invertis University. He has passed in 2007. He has a graduation in BSc Computer Science and post-graduation. Now working as a director in Novel Super TV Digital Private Limited, that is in broadcasting industry, of course. He is having 16 years of experience in practicing Sahaja from 2000. Can we have a big round of applause? Inversions, it's not like how inversions clap. Can we show how inversions clap? Exactly. Now I'd like to call upon the stage Mr. Amit Sharma ji to take this event ahead. Can we have you on the dice, please? Thank you. Hello Inversions, all my brothers and sisters here. आज ये प्रोग्राम जो हम लेकर आए हैं आपके लिए, ये कुछ फायदेमंद है, कुछ देखा जाने वाला है और स्पेशली मुझे इससे बहुत फायदा हुआ, इसीलिए चेयरमैन सर से हमने इसकी बात की और उन्होंने परमिशन दी। तो सबसे पहले हम चेयरमैन सर श्री उमेश गौतम जी का धन्यवाद करते हैं इसके लिए, पूरे सहयोग परिवार की ओर से। मेरा बहुत ही गोल्डन टाइम गुजरा है इन्वर्शिया, पूरे इन्वर्टिस में 6 साल मैंने गुजारे हैं। और जो आज हम यहाँ पे सहयोग बताने आए हैं, साथ में जो हमारे भाई तीनों आए हैं यहाँ पे म्यूजिशियन हैं, ये म्यूजिक के थ्रू कैसे हम अपना स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं और किस प्रकार हमारी पर्सनैलिटी सहयोग के माध्यम से निखर सकती है, इसका आज प्रैक्टिकल सेशन भी होगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम थ्योरी पर सुनते हैं और थॉट्स के माध्यम से ये चीज़ जानना चाहते हैं कि हाँ, हम आपको कोई मोटिवेशनल टॉक देकर चले जाएं। बट बिलीव मी, अगर आप अपनी लाइफ के जैसे आज बताया जाए, अगर 5 मिनट्स भी देंगे और एज अ साइंटिस्ट इसको करके देखें, मैं ये नहीं कहता कि अभी आप बिल्कुल फॉलो करें जैसे बता दिया वैसा ही, कोई नहीं करता, वरना करना चाहिए, लेकिन एज अ साइंटिस्ट जरूर करें, एज अ रिसर्चर जरूर करें। तो आज का सेशन हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए और अपने अंदर की एक डिफरेंट जो ग्रेविटी होती है, तो सहयोग करने से हमारे अंदर ग्रेविटी भी आती है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स अभी कवर करेंगे। इसके लिए हम श्री राहुल मोहन गुप्ता जी को इनवाइट करेंगे कि सेशन को आगे बढ़ाएं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बीइंग इन्वर्शन इस प्रोग्राम को बहुत ही हृदय से एक्सेप्ट करें और इसको फायदा उठाएं। इसका जबरदस्त प्रोग्राम है, उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू। लास्ट रो में जो स्टूडेंट्स बैठे कौन सी स्ट्रीम्स हैं? If you can hear me, please raise your hands. Okay, thank you. Thank you first of all to Invertis for inviting us here. And I think Amit has set the expectations. But it's something for your benefit. You only have to spend a little bit of time with us, and we are sure you'll be happy after this event. Can we have the presentation on the screen, please? और हमको ये शायद लाइट्स पीछे की बंद करनी पड़ेंगी। प्लीज हैव दिस प्रेजेंटेशन, गो टू द फर्स्ट लाइन। यस, थैंक्स। सो हम लोग सहयोग की बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट सहयोग।
प्लीज मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं हाउ वी इवॉल्व फ्रॉम बीइंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अमीबा थे हम लोग, से धीरे धीरे वानर रूप में आए और फिर इंसान के रूप में आ गए। व्हाट नेक्स्ट, क्या बनना चाहते हैं इससे आगे? डू वी एक्सपेक्ट अ बेटर लेवल ऑफ अवेयरनेस इन आवर एग्जिस्टेंस? क्या हमें लगता है कि हम कुछ सुपर ह्यूमन बन सकते हैं? उसके लिए क्या हमको हवा में उड़ना चाहिए, या लेटेस्ट गैजेट्स हमारे पास होने चाहिए, या बहुत हाई सैलरीज होनी चाहिए? इन सबसे क्या हम बन जाएंगे सुपर ह्यूमन्स? अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ बन सकते हैं तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। ओके, गुड। और एनी आइडियाज कैसे हम अपना लेवल ऑफ अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं? हाउ कैन वी बिकम बेटर ह्यूमन बीइंग्स? कोई आंसर्स आपसे मिलेंगे? ठीक है, एनीथिंग? आपने देख रहे हैं? हाउ डू यू थिंक वी कैन बिकम बेटर ह्यूमन बीइंग्स? हाँ, हम देख रहे हैं। ठीक है। अपनी लाइफ में अगर आप इंप्रूवमेंट करना चाहें तो क्या करना चाहेंगे? यस? Sir, understand the equal meaning of every feeling. ओके, मतलब हर किसी को सम्मान देना, Yeah, we can say. सम व्यवहार होना सबके साथ, राइट? टू ट्रीट एवरीवन इक्वली। थैंक यू, दैट्स वेरी गुड। और कुछ? यस? Start becoming more grateful about the things that I already have in my life. Very nice. To be more grateful about things which you already have, to be more satisfied. So satisfaction is a great quality. Anything else? कुछ और ऐड करना चाहिए जी? Very nice. Excellent. Become more self-aware. हम में से कितने लोग ये मानते हैं कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ? सब लोग मानते हैं? Very nice. कितने प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगले 5 मिनट में मेरे को अंदर कितने थॉट्स आने वाले हैं? कर सकते हैं? फिर मर्जी के मालिक कैसे हो? सो आज सीखेंगे ये सब हम। हमारी जो बनावट है उसका जो बेसिस है, हम आगे देखेंगे, उसका बेसिस एक प्लेक्सस है जो हमारी फाउंडेशन है। जैसे बिल्डिंग की फाउंडेशन होती है, वैसे हमारी भी एक फाउंडेशन है। उसको मेडिकल साइंस में पेल्विक प्लेक्सस कहते हैं और योग की भाषा में मूलाधार चक्र कहते हैं। और वो बॉडी के जितने एक्सक्रीटरी फंक्शन होते हैं उनको देखता है और हमें एक क्वालिटी देता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो है क्वालिटी ऑफ इनोसेंस, प्योरिटी, विच इज वेरी मच अंडर अटैक नाउअडेज। बट आपने देखा होगा अभी भी हमारे देश में ये प्रथा है कि छोटे बच्चे को हम भगवान का स्वरूप मानते हैं। देखा आपने? थोड़ा सा और बाद में जानेंगे इसके बारे में, व्हाई वी कंसिडर दैट वे। बट वी ऑल लव इनोसेंस। छोटा बच्चा के मतलब सबको अच्छा लगता है, उसके साथ खेलते हैं। वी ऑल लाइक इनोसेंस। सो वी विल रिक्वेस्ट our musicians who have very graciously come to this event कि आप प्लीज शुरुआत कीजिए। हमारे देश की प्रथा है कि गणेश जी का नाम लेके हम शुरुआत करते हैं। सो काइंडली स्टार्ट एंड देन वी टॉक फर्दर अबाउट सच। प्लीज इन पे लाइट्स ले आइए। Presentation on material first slide. जैसे कि मुझे कहा है कि सूफी म्यूजिक, तो पहले श्री गणेश वंदना, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में एक रिवायत है, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले हम श्री गणेश को वंदन करते हैं।
उसके बाद मैं आपको एक सूफी का नाम सुनाऊंगा। आप सभी की इजाजत है? इजाजत है? ओके, धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही पीछे तक ठीक से सभी को? बहुत अच्छा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा 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 अपनी छब बनाई के हो अपनी छब बनाई के जो मैं पी के
छब देखी पिया की अपनी खुशरवाजी प्रेम की जो मैं खेलूं भी के संग जीत गई तो पिया मिले हारी तो भी के संग मुझसे लैला 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 मुझसे लैला 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 मुझसे लैला मुझसे लैला 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 मुझसे लैला 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 मुझसे लैला 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 मुझसे लैला मुझसे लैला लैला मुझसे लैला मुझसे लैला मुझसे लैला लैला छाप तिलक सब चीज़ें मुझसे लैला मिलाई के मेरे साथ अगर आप लोग भी मेरा साथ देंगे और मजा आएगा सभी लोग वैसे भी इसलिए यह चौथा प्रोग्राम है हमारे इसलिए 3 दिनों से और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ यूपी में जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ के ऑडियंस भी बहुत सुनी थी मेरी गुजारिश आप सभी से छाप तिलक सब छाप तिलक सब नैना मिलाएंगे जी नैना मिलाएंगे नैना मिलाएंगे नैना मिलाएंगे बाल गम छाप तिलक सब बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रसवा बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रसवा तोरे रंग रसवा जी तोरे रंग रसवा तोरे रंग रसवा जी तोरे रंग रसवा बलि जाऊं बलि बलि जाऊं बलि 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 जाऊं मैं तोरे रंग रसवा बलि बलि जाऊं तोरे रंग रसवा अपनी सी रंग दे मुझसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीने मुझसे नैना मिलाई के
खुसरो निजाम के बलि बलि जइयो खुसरो निजाम के बलि बलि जइयो खुसरो निजाम खुसरो निजाम के खुसरो निजाम के बलि बलि जइयो जी बलि बलि जइयो जी बलि बलि जइयो खुसरो निजाम के बलि बलि जइयो खुसरो निजाम के बलि बलि जइयो ओ सुहागन की मिटाई के छापिलक सब मिलाई के नैना 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 मिलाई के बात जगम मिलाई के छापिलक सब नैना मिलाई नैना मिलाई ज़्यादातर इनकी उम्र में लोगों को पसंद है कि गिटार हो हाथ में और डिफरेंट तरह की ड्रेस हो, बट बिना किसी म्यूज़िक बैकग्राउंड के अपनी फैमिलीज में इन्होंने म्यूज़िक चुना। पहले तो ये सब तीनों सहयोग करते हैं, ध्यान करते हैं और उसकी वजह से इनके घर में क्लासिकल म्यूज़िक की इम्पोर्टेंस इनके पेरेंट्स समझ गए और उन्होंने इनकरेज किया और तीनों ने अपने मर्जी से फिर क्लासिकल म्यूजिक को एज अ प्रोफेशन चुना है। सो लेकिन के लिए तालियां बजनी चाहिए। खासकर माइक इतना मुश्किल साज है सारंगी, बहुत कम लोग बजाते हैं और सीख रहे हैं। बहुत हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मनीष बहुत ही मधुर गाते हैं और सिखाते भी हैं और अजय अभी PhD कर रहे हैं, बहुत जल्द डॉक्टर हो जाएंगे तबला में। So we're very thankful कि आप सब यहाँ पे। पीछे की लाइट बंद कर दें, थोड़ा स्लाइड पे फोकस करेंगे। अमित शर्मा जी, जिनको आपने देखा, अलुमनस हैं इस यूनिवर्सिटी के। बहुत इच्छा थी उनकी, बहुत सालों से बात करते थे कि मुझे वापस जाना है और प्रोग्राम कराना है। अभी भी देखा आपने, रनिंग अराउंड लाइक अ लाइव वायर, ये सब कुछ ठीक ठाक है। क्योंकि एक समय आता है जब इंसान को लगता है कि जो मैंने अपनी इंस्टीट्यूशन से पाया, मस्ट गिव बैक, और इससे बड़ी चीज़ क्या होगी, ऐसा उनका मानना है। स्लाइड चेंज करें प्लीज। नेक्स्ट, हमारे बीच डॉक्टर अपर्णा भी हैं, जिनकी इंट्रोडक्शन शुरू में हुई थी। डॉक्टर हैं, सहयोग की डीप नॉलेज रखती हैं। तो मैं उनको इन्वाइट करूंगा कि थोड़ा सा हमको बताएंगी सहयोग के बारे में और उसका को रिलेशन विद मेडिकल साइंस। डॉक्टर अपर्णा प्लीज। Namaskar and a very good afternoon to one and all present here. First, I would like to thank Chairman Sir and all the respected staff here for giving us the opportunity to talk on Sahaja Yoga meditation here for the stress management and human well-being. So, what is important in this day-to-day life is to know ourselves. We are being in existence, as you saw in the previous slide, that we have evolved from one stage animal, amoeba cell, to this human state. So still the process of evolution is going on,
and what is the next step for the Homo sapiens. So this is today we are going to discuss and tell you to make you aware of this existing energy inside you, which has given us this stage of superhuman, we can say now, which is actually the after the science stage it can be perceived in yourself, in your hands, in your central nervous system, and in your brain, or the sastra we called, or the topmost part of the brain. So I would like to explain you how is the human system working and how is the central nervous system working through meditation. You can see the first picture where you can see the spiral. This is actually the representation of the energy which is called as Kundalini, which is existing at the base of the vertebral column, lower end of the spinal cord. It is in a 3.5 circle, and it is a dormant energy given to us by God. We don't know about this and the effect of this, but once it is awakened, we know the power of it. So आपके पास पॉइंटर है क्या ऊपर? या इस साइड पे ले रही पॉइंटर प्लीज. लेजर पॉइंटर है क्या आपके पास? our culture is very deep, and in previous old days, Rishi Munis used to meditate and knew this power of this Kundalini, and it was those days was very difficult to know the power and to awaken this, but now it has become very easy, and we will discuss more later on. So you see the spiral energy at the base of the vertebral column. Here you can see an elephant shaped bone, which is the base tailbone, it is called as sacrum also, which is the abode of the energy. That's why the Greek used to call it sacrum bone. You can see the bone up, and then you can see the moving vertebral column through which the Kundalini rises in the central nervous system. Down you can see the skull. You know the छोटे बच्चों में जो होता है तालु भाग बोलते हैं हम, थोड़ा नरम होता है, and that is the place from where the Kundalini gets out and meets the cosmic energy. This is called as frontal bone, and it is very soft in the newborn और छोटे बच्चों में भी. यहीं से कुंडलिनी निकल के परमात्मा की शक्ति से मिलती है, जिसको कि हम योग कहते हैं. योग मतलब आत्मा और परमात्मा का मिलन. तो यहाँ से ही होता है, इसे हम ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं संस्कृत में, या फंटनल बोन. Next slide please. Now we will discuss more about stress. You know how this rat race is going on. You children also might have studied 10th, 11th, 12th, how stressful life it was. So even still, after the university will finish, you will go in the world and you will see the impact of bad stress on your life. So what is stress actually? Stress is, can anybody tell me what you feel? What is stress? Any of the student can tell? It's very easy. Now I am giving you stress, I think. So any difficult situation which you come across in your life, could be any mental problem, physical problem, an emotional problem, which brings pressure in your personality, which you cannot cope up with it. That is called stress. Can we have some light on the audience? So this stress makes a very bad impact in your peace of mind, you can say, in your physical health, in your emotional health. Anywhere in your life, you will feel it. It will bring pressure, and then you will have all the worries, you can say, or emotional pressure, apprehension, anxiety you will have, or sometimes state of excitement also you can have through the stress. So anything which is harming you in your life can be a stress. Please change. So this also brings frustration, headache, sadness, depression, everything includes a stressful life. So how we can overcome this? Please change. So you can see in this chart how it is making you in your physical life tension, headache, हाथ पैर कांपना, घबराहट, ये सब चीजें एक लक्षण होता है सिम्टम. मेंटल में हाउ यू टेक इट. अगर ज़्यादा ही बहुत हो गया तो आपको डिप्रेशन आ जाएगा या फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा.
फिर मेंटल एक्टिविटी आपकी रिफ्लेक्ट होंगी, कभी आप भूल जाओगे, अटेंशन नहीं रहेगा क्लास में, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और एक डिप्रेशन जाएगा. फिर कई आजकल स्टूडेंट्स गोज टुवर्ड्स ड्रग्स एंड ऑल. सो दीज आर ऑल बैड थिंग्स विच इज कमिंग इन आवर लाइफ. बिहेवियर आपका चेंज होगा, टीचर परेशान रहेंगे आपसे या आप परेशान रहेंगे टीचर से. तो एक बैलेंस लाना पड़ता है लाइफ में. तो इसका इफेक्ट क्या होता है, अगर ज़्यादा ही हो गया है तो हमारी बॉडी रिफ्लेक्ट करने लगती है. हमारी बॉडी में कभी हम इम्यूनिटी कम हो जाएंगी तो इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा. अगर बहुत ही डीप हो गया है तो ये कैंसर तक पैदा कर सकता है. डिप्रेशन, कितने लोग आजकल डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते हैं, साइकेट्रिस्ट के चक्कर लगाते रहते हैं, है ना, दवा के ऊपर ज़्यादा चले जाते हैं. फिर स्किन डिसऑर्डर शुरू हो सकती है, अपने स्किन स्टार्ट्स टू रिएक्ट टू द स्टेट एंड एक्जिमा वगैरह, खुजली, ये सब बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो हम डॉक्टर्स के पास आते हैं. एसिडिटी एक बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को होता होगा, पढ़ाई कर रहे हो, रात रात भर जग रहे हो तो देखते हैं कि जलन हो रही है पेट में. तो ये सब स्ट्रेस है. हार्ट अटैक यंगस्टर्स में आजकल बहुत कॉमन है, हार्ट अटैक भी. तो ये भी एक ओवर एक्टिविटी का लक्षण होता है जो कि हमारे अंदर एक इम्बैलेंस से आया है. नेक्स्ट. अब हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं. आपने भी देखा होगा कई बार कि डॉक्टर कहता है कि दवा इसका इलाज नहीं है, गो फॉर मेडिटेशन. क्यों? क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसा तरीका है जो इसको बैलेंस में ला सकता है, ये ओवर एक्टिविटी को कम कर सकता है. तो बहुत कुछ है अपने को डाइवर्ट करने का, अपना अटेंशन डाइवर्ट करके अपने को संभालने का. बट द बेस्ट वे इज द मेडिटेशन. टुडे वी विल मोर emphasize on the meditative stage of our well-being. Change please. तो इसके लिए समझना हमको हमारी subtle body को बहुत जरूरी है. Physical body you know, you might be knowing the anatomy, the physiology of working of all the system, but let us see about subtle body. How God governs our body, or how God has created the nervous system and the central nervous system, and also part it is autonomous nervous system which controls all the functioning of the organ. So we can Change. Next. Next. स्वास्थ्य जरूरी है, स्व एंड अस्थ जैसा देखा आपने, और बैलेंस जरूरी है हमारी बॉडी में. तो इसके लिए हम पहले जानते हैं कि थोड़ा आगे चलिए, और आगे चलिए, और आगे. नेक्स्ट. 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 प्लीज कीप मूविंग. नेक्स्ट. यस. this you can see the subtle system. Here you can see the body and 3 channels. It is coming from down, going upwards, crossing at the mathe ke level pe, at the akya level it is called as, and going in the opposite direction. And then you can see the stars or the petals, the flowers with different number of petals, which are called as chakras. So these chakras are 7 in number, and it is actually the energy centers in our body, and it is controlling the respective organs. Suppose at the neck level, if you see a chakra that is called as a Vishuddhi, it is the 5th chakra, and it controls all the functioning of the ear, nose, throat, and the neck part, and even the hands. So these chakras have the different qualities and different functioning of the system in the central nervous system. Now, if you can see blue channel, which is coming from down, going upwards and crossing at the akya level or at the number 6 chakra. This is called as the left channel in our body, and it is all, yeah, and it starts from the 1st chakra and then it goes upwards and crosses. So this is called as left sympathetic system. As you might be knowing, most of the group, if you are a biology student, that there is a sympathetic and a parasympathetic system. So both the system, right parasympathetic and the left sympathetic, they are the complementary to each other. They work in opposite way. So this is a left sympathetic called as Ida Nadi in Sanskrit, and it governs our past. It deals with our emotions, and it deals with our behavior. So it has all the memories of your past. Suppose it is in imbalance, or suppose it goes out of the way, then it can create an emotional disturbance in our mind. We will be very bad stage or might go in depression.
So this quality is of the left side. It is called as a channel of desire. So it on the left is our desire part. Same way you can see the right, it is in yellow in color, it is called as the right sympathetic system, and it governs the action part of our life. So whatever we are doing, we are thinking, we are planning, all this is governed by the right side. Activity, it has the action part. So the left is the desire part, right is the action part. So these goes complementary to each other. So whenever we are in our lifestyle, either we are in the past or in the future, which is the right side action. So never becomes in the balance. How is the balance? Is in the center, which is called, if you can see interrupted line in between the flowers. So this is called as the Sushumna Nadi or the parasympathetic. So this parasympathetic nervous system, it is the autonomous nervous system, and it has the function which is involuntary, means we cannot control. Like you see, we are breathing or our heart is beating. So how? Who is controlling this? This is controlled by the auto, that is the divine energy which is given to us. We don't have control on it, but still by way of meditation we can still concentrate on it, and we can create a balance in our life. And this balance is very important to cover the stress which we have because of this inactivity or the overactivity of the two channels which we saw, that is right sympathetic and the left sympathetic. So this is the way our subtle system works. All the energy centers we have different. First is called as Muladhara, second is the Swadhisthana, third is the Nabhi, fourth is the Anahat, fifth is the Vishuddhi we discussed already, and the sixth is the Agya Chakra, which is called as the third eye at the level of the forehead. And the up you can see a representation of a lotus having 1,000 petals. This is at the Brahmaran level we saw, at the fontanel level, Talu Bhag mein dekha humne. So that is the topmost part of the brain. It is called as limbic system, and this limbic system, even doctors don't know how it functions. Most of the functioning we don't know. So this is the seat of God or divine energy, we can say. So this is to be awakened. When it is awakened, it gets enlightened, and the manifestation of divine energy starts to work out. Many of the students, as I am seeing from here, are in the siesta period, I think so. So please get awakened. A very beautiful moment is waiting for you. I think you can give a big clap so that everybody can wake up. Okay. So the energy, Kundalini is, again you can see in the downmost part, it has to be awakened. We will have an experiment now, and you will enjoy this experiment. And we can go ahead with this. So every function of the plexus, we have anatomically all the medical correlation of all these plexus, and it functions accordingly. Now, next. Now, Mr. Rahul will explain you more about, and we will have an experiment. थोड़ा सा ऊपर चलते हैं वापस प्रेजेंटेशन में, और 5-6 स्लाइड्स ऊपर जाइए, और ऊपर जाइए, हाँ बस यही रो सहज का मतलब जानते हैं आप सब, सिंपल होता है, सरल होता है. सो संधि विच्छेद श्री माता जी ने हमको समझाया सहयोग में. सह मतलब हमारे साथ, और जो हमारे जन्म, समथिंग विच इज बॉर्न विद इन. क्या है वो चीज, क्या है विच इज बॉर्न विद इन अस. और योग का मतलब कौन लोग जानते हैं, बताइए. क्या बात, आत्मा का परमात्मा से मिलन. वेरी नाइस. और कोई मीनिंग भी है किसी के पास? बैठिए प्लीज. आगे चलते, चेंज नेक्स्ट. सो बिल्कुल ठीक कहा आपने. उसको सिंपल वर्ड्स में कहें तो योग मीन्स यूनियन, विच कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड युज, जिसका मतलब यूनाइट करना. सो हम ढूंढ रहे हैं, हम कुछ तरीका ढूंढ रहे हैं जिससे हमारी इमोशनल साइड, हमारी फिजिकल साइड बैलेंस में आ जाए. हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है अपने आप से, हमारे
पीयर प्रेशर्स हैं, सोसाइटी के प्रेशर्स हैं, फैमिली के प्रेशर्स हैं, करियर एक्सपेक्टेशंस हैं, वो किस तरह से मीट हो जाए, कुछ ऐसा बैलेंस आ जाए हमारी लाइफ में। आई एम श्योर कि हम सब ऐसा चाहते हैं सोल्यूशन। कितने लोग चाहते हैं ऐसा सोल्यूशन? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, मेडिटेशन क्या होता है? आई एम श्योर कि आप में से कई लोगों ने ट्राई भी किया होगा कभी, ध्यान हो सकता है कुछ। क्या होता है ध्यान? कोई बताना चाहेंगे? अच्छा, थॉट्स किस किस को नहीं आते? सबको आते हैं? थॉट्स आते हैं ना? सो थॉट्स जो हैं वेव्स की तरह चलते हैं और हम इनके तह पर रहते हैं। सो अभी अनाउंसमेंट हो जाएगी, अगले 5 दिन छुट्टी रहेगी, सब खुश हो जाएंगे। और अभी अनाउंसमेंट हो जाए कि कल से क्लासेस एक्सटेंड हो जाएंगी। ऐसा थॉट भी आ सकता है ना हमको, हो सकता है ऐसा ना हो, पर थॉट आ सकता है। सो थॉट हमें कंट्रोल करता है कि हमारा मूड किस तरफ जा रहा है, और हमें ऊंचाई पे भी ले जा सकता है, नीचाई पे भी गिरा सकता है, बट एक्चुअली वो रियलिटी नहीं है। और ज़्यादातर हम किसके बारे में सोचते हैं? पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में। काश तब ऐसा नहीं हुआ होता, या ऐसा होता तो हम ऐसा कर लेते, या कल ये करेंगे और ये करियर चुनेंगे, फिर इस जॉब में जाएंगे, फिर वो करेंगे। ऐसी कोई ना कोई प्लानिंग चल रही होगी। ये प्रोग्राम जब खत्म होगा तब ये करेंगे, जोर से भाग के जाएंगे हॉल से। सो बट ये सब रियल है क्या? मूवीज देखते होंगे आप, श्योर आप सब लोग। कुंग फू पांडा देखी आपने? तो उसकी कुछ लाइंस मैं आपको याद दिलाता हूँ। Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift. That's why it's called the present. So if somehow our attention could be in the present, we would be in meditation. पर वो कैसे आए ध्यान? प्रेजेंट में कैसे आएंगे हम? मुंडा को उपनिषद में रेजर्स एज बोला गया इसको। रेजर्स एज है, हमारा ध्यान मिस कर जाता है इस विलंब को। जब हमारी थॉट्स चलती हैं, बीच में विलंब आता है, उसको मिस कर जाते हैं हम लोग। अगर उसमें हम किसी तरह स्थित हो जाएं तो हम ध्यान में रहेंगे। सुनने में सिंपल, कैसे आएंगे मालूम नहीं। तो हमारा टेंशन पेंडुलम की तरह चलता रहता है बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, बट वी हैव टू बी इन द प्रेजेंट। नेक्स्ट प्लीज। फाउंडर ऑफ सहयोगा इज हर होलीनेस श्री माताजी निर्मला देवी। हमने सुना सहयोगा को स्टार्टेड इन 1970 बाय हर। पुरानी नॉलेज है, बहुत पुराना ज्ञान है हमारे वेदों में, शास्त्रों में। Not only in India, across the world, across civilizations, this knowledge has been known that there is a latent energy within each human being, and we all need to get connected to that energy. It's called self-awareness. One of the students put it very nicely: self-awareness, self-realization. द्विज होना कहा गया है। हमारे देश में तो इसको पावन भूमि कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं, महान लोग हुए हैं जिन्होंने इसके बारे में बात की। उसके लिए 2 चीजें चाहिए, एक हमारी प्योर डिजायर और एक प्रॉपर गाइडेंस और उसको देने वाले का आशीर्वाद। सो आज की डेट में 140 से ज्यादा कंट्रीज में सहयोग चल रहा है। कोई उसके लिए चार्जेस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, केवल शुद्ध इच्छा चाहिए। श्री माता जी ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम ट्रैवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, गांव-गांव में गई, अलग-अलग देशों में गई, और उन्होंने सहयोग बताया लोगों को। इट्स जस्ट द लैंग्वेज ऑफ प्योर डिवाइन लव। और बहुत बड़ी साइंस भी है, जैसे आपने देखा, डॉक्टर्स आर रिसर्चिंग दिस। बहुत सारी स्टडीज हैं इसके ऊपर, मेडिकल स्टडीज भी हैं। श्री माता जी herself was honored by many countries. Next slide, please. She was born on 21st March 1923 in Chindwara, which is the geographical center of India. 21st March is the spring equinox, जब दिन और रात बराबर होते हैं 12 घंटे के, और दिन में ठीक 12 बजे उनका जन्म हुआ था। And when she was brought out of the mother's womb, she was spotlessly clean, so she was named Nirmala. Her parents were freedom fighters, Shri P.K. Salve and Shrimati Cornelia Salve. Shri Mataji herself, from the age of 7 years, used to stay in the ashram of Mahatma Gandhi, and later was a youth leader in the Indian National Freedom Movement. She studied medicine, but because of partition, her studies got affected, and she was married to Sir C.P. Srivastava, who was then an ICS officer, जिसको हम आज IAS के नाम से जानते हैं.
He was later secretary to the then Prime Minister Pandit Lal Bahadur Shastri, subsequently chairman of the Shipping Corporation, and then Secretary General of the IMO, which is a UN body, for 4 consecutive terms. He was honored by the Queen of England, also by the Government of India, Padma Bhushan and Padma Vibhushan. Shri Madhuri herself was recognized in many countries, including Italy, Russia, America, for her selfless work and for establishing this system which can change a human from within. आगे चलते हैं. Next. So, this is her words. To know the reality, you must enter the kingdom of meta science. It's known as meta science, this spirituality, beyond the mind. And that is possible only if you enter the dimension of collective higher consciousness through self-realization. So today we've all gathered here to feel and to achieve our self-realization. That will be practical part of the session. Next please. Next. So हमने ये सब देख लिया और हमारी भी शक्ति जागृत हो सकती है और वो फिजिकली वेरीफाइबल है. जैसे अमित जी ने शुरू में कहा, प्लीज डू इट एज अ साइंटिस्ट. उसको देखिए एक्सपेरिमेंट करके. जैसे लैब में हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जब हो जाता है वो लिखते हैं हेंस प्रूव्ड. सो नाउ वी डू इट एज एन एक्सपेरिमेंट, बट वी मस्ट डू इट सिंसियरली. Some of our friends have something interesting. We'll call you later. In the meantime, I'll request our Rathore brothers, आप प्लीज स्टेज पे आइए और ये थोड़ी सी ओंकार थेरेपी हम सबको करवाएंगे, which will help us to go into meditation. हेलो. हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है ठीक से पीछे? ठीक है. तो जैसा कि कहा कि हम लोग थोड़ी देर ज़्यादा नहीं, 10 मिनट ओमकार का उच्चारण करेंगे. ओमकार म्यूजिक थेरेपी जो उसको हम महसूस करेंगे. आप लोग करना चाहते हैं? ओके. तो एक 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका. 10 मिनट एक मेरे कहने से आंखें थोड़ी देर हम बंद रखेंगे, है ना, और करेंगे साथ में. अब इसके लिए थोड़ा सा मैं चलो भाई, आंखें बंद करना है, बात नहीं करना है. तो थोड़ा सा इसके बारे में, जैसे अभी आपको समझाया भी गया था कि कुछ लोग होते हैं जो भूतकाल का सोचते हैं, कुछ लोग होते हैं जो भविष्य काल का सोचते हैं. तो ये जो ओमकार, तीनों नाड़ियों के बारे में भी आपने बताया, है ना. हाँ. तो जैसा अभी बताया गया कि हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ होती है, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी. तो जो कुछ लोग होते हैं जो हमेशा पास्ट का सोचते रहते हैं, वो जीते हैं ईड़ा नाड़ी पर. तो जो ओमकार है, ओमकार 3 शक्तियों का मिलाप है, अ, उ और म. जब हम अ का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो ईड़ा नाड़ी है वो शुद्ध होती है. हम पास्ट से धीरे धीरे वर्तमान में आने लगते हैं. ऊ का उच्चारण करते हैं तो पिंगला नाड़ी में जो भी ब्लॉकेज है वो क्लीन होते हैं और शुद्ध होती है. और जब हम मकार का उच्चारण करते हैं तो हम बिल्कुल परम शांति को प्राप्त होते हैं. अब थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसके बारे में ज़्यादा नहीं जान लेते हैं कि देखिए 2 प्रकार के, क्योंकि ये आखिर ऐसा करने से हमको क्यों ध्यान लगता है. ऐसा ये आज की प्रैक्टिस नहीं है, ये कई हज़ारों वर्षों से प्रैक्टिस होती आ रही है. देखिए 2 प्रकार के नाद इसमें बताए गए हैं. हम लोगों को सिखाया गया है कि 2 प्रकार के नाद होते हैं. एक होता है, शायद आप लोगों ने कभी सुना होगा, आहत नाद और अनाहत नाद. अब आहत नाद तो वो नाद होता है जो 2 चीज़ों के टकराव से या 2 चीज़ों के घर्षण से, घिसने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको हम आहत नाद बोलते हैं. यानी जैसे अगर तबला ऐसा बीट किया जाता है तो 2 चीज़ों का टकराव हो रहा है,
सारंगी पे दो चीज़ों का घर्षण हो रहा है। तो आहत नाद को तो हम यूज़ करते हैं म्यूज़िक के अंदर, पर जो अनाहत नाद है वो नाद होता है जिस नाद के पुराने ज़माने में ऋषि मुनि उपासना किया करते थे और साधना किया करते थे। धीरे धीरे जब वो ओमकार का उच्चारण किया करते थे तो पहले उनको गहरी शांति प्राप्ति होती थी, फिर गहरी शांति धीरे धीरे ध्यान का रूप लेती थी, और ध्यान जो है जाके एक समाधि, उतना नहीं जाएंगे हम, हाँ डरे नहीं, हम उतना नहीं जाने वाले हैं, समाधि में नहीं जाएंगे हम। बट मैं आपको बता रहा हूँ इसका जो आनंद है, 10 मिनट रोज सुबह आप करेंगे, 10 मिनट रोज शाम को अगर इस पद्धति को करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं, बहुत सारा जो आपको टेंशन स्ट्रेस जो भी होता है उससे आप बच सकते हैं, है ना। तो ये जो मैं बता रहा था कि जो गहरा ध्यान, पहले ध्यान शांति, फिर ध्यान जो है वो समाधि की अवस्था में चला जाता था। अब आपने कभी देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि 2-2 महीना 3-3 महीना वो ध्यान में बैठे होते थे। ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? कोई तो कारण होगा, ना खाना खा रहे ना पानी पी रहे, कहीं से तो ऊर्जा मिल रही होगी। तो ये जो जब अनाहत नाद जो जागृत होता है, इस पर हम फिर कभी मौका मिलेगा तो लंबी चर्चा करेंगे, आज छोटी सी कर रहे हैं। तो जब अनाहत नाद जागृत होता है, जो हमारे अंदर ओंकार, जब बच्चा पैदा होता है तो ये स्वर और लय दोनों को लय के पैदा होता है। हमारे अंदर निरंतर एक स्वर निरंतर चलता रहता है। अगर हम गहरे ध्यान में जाके उसको सुनने का प्रयास करें तो हमें, या एकांत में बैठ के भी सुनने का प्रयास करें तो कभी कभी वो ध्वनि हमको सुनाई देती, उसे अनाहत नाद कहते हैं। लय जो है हमारे हृदय में चलती है, 1 2 3 4, कभी कभी डर लगता है तो ये बढ़ जाती है, या दौड़ते भागते हैं तो भी बढ़ जाती है। तो ये कहते हैं कि यहाँ पर हमारी आत्मा है, भगवान शिव का वास है, और जब ये यहाँ से शिव स्थान छोड़ देते हैं तो फिर वो शव हो जाता है। तो थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे, मुझे महसूस हो रहा है आप लोगों को वहाँ बहुत गर्मी लग रही है, कोशिश करेंगे शायद इसके बाद आप लोगों को गर्मी कम लगेगी। तो सिर्फ जैसा जैसा मैं बताते जाऊंगा वैसा वैसा आप प्रैक्टिस करेंगे, उसको सिर्फ महसूस करते हैं। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद, क्योंकि आंखें खोलते हैं तो चित्त इधर उधर भटक जाता है और बहुत सारी चीजें हमको आ जाती है। आंखें बंद, हाँ आंखें बंद। अच्छा, कुछ लोग तो सो गए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। आंखें बंद करके सबसे पहले हम जो संगीत का सबसे पहला जो स्वर है सा, उसका उच्चारण करेंगे। कैसे करना है एक बार मैं बताता हूँ, उसके बाद में हम सब साथ में करेंगे। सा अब सब लोग मेरे साथ कीजिए। सा आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। देखिए ये तो मुझे कहा गया है कि आप लोग चाहते हैं, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, इस बात की चर्चा कर रहा हूँ, नहीं तो मैं मेरा करके चला जाऊंगा। फिर से सा, जोर से, जोर से, नहीं स्वर में, सा, ये बात बहुत अच्छी बात है। आप लोग बहुत सुरीले हैं, थोड़ा सा कोशिश कीजिए। हाँ, हम बाद में हंसेंगे, सारे मिल के हंसेंगे। मैं भी आप लोगों के इससे कुछ ज़्यादा साल नहीं हुए, 8-10 साल पीछे, थोड़ा सा 8-10 साल आप लोगों से आगे हूँ, तो हम लोग, मैं समझ रहा हूँ, पर कीजिए। सा, अब हम ओमकार का उच्चारण करेंगे, आंखें बंद करके ओमकार का। ये प्रैक्टिस आप रोजाना घर पर भी करेंगे, अगर 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को, तो आपको बहुत सारी चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। आप जो ये दिन भर का जो टेंशन रहता है, दिन भर की जो थकान होती है, अनिद्रा, जो नींद नहीं आती है, या जो हमको कई बार सांस फूल जाती है, ये सारी चीज़ों से फायदा मिलेगा। ठीक है, अब मैं एक बार ओमकार का उच्चारण करता हूँ, उसके बाद आप लोग सभी कीजिएगा।
हेलो, शुरू करें? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइट जाने के बाद आप लोगों ने सभी ने अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया मुझे। हम 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट हम करेंगे, सभी उच्चारण करेंगे फिर से। कीजिए। क्या बात है, बहुत अच्छी। और एक बार। बहुत अच्छा। अब गहरी सांस लेके जहां तक आपकी सांस जा सकती है, आखिरी पॉइंट तक, वहां तक कीजिए। शुरू कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे हम माहौल में आ रहे हैं। आज इतना ही करते हैं, इसको हम आगे और कभी आप चाहेंगे तो फिर इसके बारे में और गहराई से समझेंगे। अब हम जिस चीज़ के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो हमारा सेल्फ रियलाइजेशन, वो लेंगे। उसके बाद आगे जैसा भी माहौल बनेगा हम करेंगे। We are now at towards the last part of the program, जिसमें हम प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। हमारी एक रिक्वेस्ट है, उससे पहले आपने बहुत सारा टाइम निकाला है इस प्रोग्राम के लिए, another 15 minutes, प्लीज स्पेंड दिस टाइम वाइजली। आप बात तो बाहर जाके भी कर सकते हैं, इफ यू वांट वी कैन अलाउ यू टू मूव आउट नाउ, बट हैविंग स्पेंट सो मच टाइम एंड गेटिंग समथिंग which can benefit you for the rest of your lives, so क्यों ना कोशिश करके पालें उसको। गर्मी सही है, आपने थोड़ी इनकन्वीनियंस सही, 10-15 मिनट और सही। लेट्स गिव इट अ सिंसियर ट्राई। क्या आप मेरे साथ हैं? ओके, हम लोग एक छोटा सा वीडियो देखेंगे सुमाधा जी, जिसमें सिखा रहे हैं सहजो। अभी शुरू मत कीजिएगा। सो ये जो 3 चैनल्स जिसके बारे में हमने जाना, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। सो लेफ्ट और राइट हमें इम्बैलेंस की तरफ ले जाते हैं। वो इम्बैलेंस हम 5 तत्वों के इस्तेमाल से कैसे दूर कर सकते हैं, और सेंटर पे आना है उसके बाद, और अपनी शक्ति को महसूस करना है। वो करवाएंगे हमको थोड़ी देर में। जब हमें कहा जाए आंखें बंद करने के लिए वीडियो में, तो प्लीज आंखें बंद कर लीजिएगा। जब तक दोबारा खोलने को ना कहा जाए, आंखें मत खोलिए। Please close your eyes when asked to and open when you are asked to open again. And please do this sincerely. Please take off your shoes wherever you are sitting. जहाँ बैठे बैठे बिना बात किए चुपके से अपने जूते उतार के चेयर के नीचे रख लीजिए। बात करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इसमें। Are we all ready? Good to go? Before we dive into this session, I request all the DCs to please be active, and all the Abhiruchi members, please stand on your seats and please be alert. We expect the full compliance of the rules and regulations in this auditorium. Please, it's a request from everyone. You're presenting Invertis University, so please make sure that you maintain the decorum of the hall. And any kind of indisciplinary activity will be
wholesome responsibility of all the DCs and Abhiruchi members present over here. So please be active. Thank you. We respect your freedom to have this or not to have this. That's your freedom. हम उसका पूरा आदर करते हैं. अगर आप नहीं करना चाहें तो कृपया चुपचाप बैठे रहिए. Please let us not disturb those who want to have it. Okay? इतना तो हम मान रख सकते हैं एक दूसरे को. प्लीज थोड़ी देर बात मत कीजिए. लेट्स सी इतनी पावर है कि हम बिना बात किए रह सकते हैं 10 मिनट या नहीं. सो विदाउट डिस्टर्बिंग, आप जो ना करना चाहें वो आराम से आंखें बंद करके बैठे रहें. जो करना चाहें उस प्लीज को फॉलो करें. विल नाउ स्टार्ट द वीडियो. प्लीज दोनों पैर अलग अलग रखें. डोंट क्रॉस योर लेग्स. दोनों पैर जमीन पे होने चाहिए. हाथ खुले रखने हैं. दोनों हाथ खोल के गोद में रखें. प्लीज कीप बोथ योर हैंड्स ओपन इन योर लैप. कोई मुद्रा ऐसे नहीं बनानी है, खुले रखने हैं. कीप योर बैक्स रीजनेबली स्ट्रेट. बहुत टेंशन में नहीं हो, लेकिन आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए. बहुत अच्छी चेयर्स हैं, रिक्लाइनिंग चेयर्स हैं और मज़ा आता है, पर थोड़ी देर सीधे हो जाएगी. और कुछ लोगों की ड्यूटी है, वी रिस्पेक्ट दैट, बट वील रिक्वेस्ट दैट व्हेन दिस वीडियो इज ऑन प्लीज फॉलो द गाइडलाइंस. और जो नहीं करना चाह रहे हैं उनको कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए. 10 मिनट के लिए प्लीज फॉलो दैट इफ यू आर विलिंग. सो लेट्स हैव द वीडियो नाउ. हमें प्रसन्न चित्त रहना चाहिए. प्रसन्न चित्त रहने का मतलब यह है कि परमात्मा ने जो कुछ हमें दिया है आज तक, उसके लिए हम उनका उपकार मानते हैं, अनुग्रहित है और उनके आभार मानते हैं. और जो लोग प्रसन्न चित्त नहीं है, जो रोते रहते हैं, वो रोते ही रहेंगे. जब हम परमात्मा के दरबार में जाने वाले हैं तब और भी प्रसन्न चित्त होना चाहिए. मैंने देखा पंडाल में जब यहाँ लोग आते हैं, सब लोग नए कपड़े पहन के, स्त्रियां अपने आभूषण पहन करके, पुरुष बहुत प्रसन्न चित्त अपनी सारी फैमिलीज को लेकर के देवी के दर्शन के लिए आते हैं. आज आप अपने दर्शन के लिए जा रहे हैं और सच्चे दर्शन के लिए जा रहे हैं, इसलिए बहुत प्रसन्न चित्त होना चाहिए, क्योंकि आप जो स्वयं एक आत्मा है, अत्यंत सुंदर चीज है, अत्यंत आनंददायी, सत्य की साक्षात मूर्ति है. इसलिए प्रसन्न चित्त होकर के ये कार्य करना चाहिए. आज बिल्कुल ही शांति से हम लोग कोशिश करेंगे कि कुंडली का जागरण हो जाए. पहले हम अगर सिर्फ संतुलन पे ही आ जाए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि संतुलन के लिए पहले लेफ्ट हैंड मेरी ओर, आंख में बंद करें. लेफ्ट हैंड मेरी ओर देखें, विचार न करते हुए. लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड जमीन पर, जमीन की ओर. जूते उतार रहे हैं, अर्थात जूते उतार रहे हैं. मेरी ओर नजर रखें. लेफ्ट हैंड मेरी ओर और राइट हैंड जमीन की. विचार रखें. मेरी ओर देखते हुए विचार रखें. निर्विचार है, आप रह सकते हैं. दोनों पांव अलग अलग रखें जमीन पर, पूरी तरह से तलवे उसके जमीन पर होने चाहिए. और सीधे बैठ करके लेफ्ट हैंड मेरी और राइट हैंड से आंख में बंद, निर्विचार में रहे.
अब राइट हैंड मेरे ओर और लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। बहुत ऊंचा नहीं, इतना बस, ज्यादा इससे तकलीफ हो, ऐसे आराम से आराम से। मेरी ओर निर्विचार होकर देखिए, आकाश की ओर। और फिर से लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड जमीन की ओर। इस भारत माता की, इस पृथ्वी माता की ओर, और निर्विचार है। फिर से आप राइट हैंड मेरे ओर और लेफ्ट हैंड अब आंख बंद करके और लेफ्ट हैंड मेरी ओर और राइट हैंड सर पे रखें। आंख बंद कर ले, सर थोड़ा झुका ले, आंख बंद कर ले, निर्विचार है। सर के ऊपर में देखें कि ठंडी हवा आ रही है। लेफ्ट हैंड मेरे ओर, जरा सर झुका ले। अब 3 बार मां क्या है, यह परमात्मा की प्रेम शक्ति है, ब्रह्म शक्ति है। आज आत्मा पे बात करते ही मैंने जाना कि आप सबकी ही कुंडलिनी जग गई है। जिन जिन लोगों के हाथों में या सर से ठंडक आई, वो अधिकतर बगलों में बैठने का या कहीं एक जगह बैठने का कार्य नहीं, ये सामूहिक चेतना का कार्य। आप जान जाइएगा कि क्या मजा और क्या चीज। और आपने हाथ में सांप पकड़ा है, सिर्फ जिंदगी कश्मकश की और दुख से भरी हुई है। बेहतर है कि कामयाब हो गया है। आज हजारों लोग सहयोग में इच्छा को थोड़ी ईमानदारी से बताएं, सिर्फ को छूना नहीं था, थोड़ा थॉट्स शांत हो गए, विचार शांत हो गए, रिलैक्स फील कर रहे हैं। वी मैनेज टू फील, विच मीन्स 10 मिनट शाम को इतना ही टाइम देना है। की तरफ फिर राइट हैंड सामने रख के लेफ्ट हैंड